खबर इस वक्त आ रही है ऑपरेशन सिंदूर पर उप सेना प्रमुख का बड़ा खुलासा कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर हम 3 दुश्मनों से लड़ रहे थे। पाकिस्तान के 81% हथियार चाइनीज थे और चीन ने पाकिस्तान को हथियारों के लैब की तरह इस्तेमाल किया है। ये उप सेना प्रमुख ने अभी ये बातें कही हैं और खुलकर कहा है कि हम 3 फ्रंट पर इस लड़ाई को लड़ रहे थे, 3 दुश्मनों से ये लड़ाई हम लड़ रहे थे और 81% चीनी हथियार थे उनके पास। राहुल सिंह उपसेना प्रमुख हैं, उन्होंने कहा हम चीन, तुर्की और पाकिस्तान से लड़े। बड़ी बात वो कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं। अब तो नाम लिया जा रहा है इसमें, उपसेना प्रमुख के द्वारा नाम लिया जाना, चीन का नाम लिया जाना, तुर्की का नाम लिया जाना। चीनी हथियारों से लड़ रहा था पाकिस्तान और चीन ने पाकिस्तान को हथियारों की लैब की तरह प्रयोग किया। फिक्की के कार्यक्रम में बोल रहे हैं उपसेना प्रमुख राहुल सिंह। वहीं से ये बड़ी बात निकल करके आई है कि लड़ाई केवल पाकिस्तान से नहीं थी, बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगा हुआ था, लेकिन इसके पीछे से लड़ रहे थे चीन और तुर्की मिलकर। तो एक बड़ा एक किस्म से एक खुलासा कहिए या एक्नॉलेजमेंट कहिए इस बात को। ये बात तो हम जानते सब हैं, लेकिन इसको यूं कहना, आर्टिकुलेट करना, ये बड़ी बात है। बिल्कुल सही है। इन्होंने पहली बार ये हमने नाम लिया है चीन का और टर्की का। इसको अगर मैं स्टैटिस्टिक्स में कहूं तो चीन ने, या आपको याद होगा, PL-15 दी थी। PL-15 लगाए थे इन्होंने J-10 और JF-17 जहाज पे, और फिर क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने हमारे जहाजों को शूट किया इससे। सर एक सिंह, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन आ रही है और अब इन्होंने ये भी कहा है कि DGMO को लेकर जो बातचीत हुई भारत पाकिस्तान की DGMO में, वो पाकिस्तान ने चीन को लीक करी, चीन को हमारे सेनाओं के बीच की बातचीत लीक करी। ये उपसेना प्रमुख कह रहे हैं और कि पाकिस्तान चीन को जानकारियां लगातार देता जा रहा था, हम उससे सीधे बात कर रहे थे और वो आगे चीन को बता रहा था। और तुर्कियों के ड्रोन पायलट पाकिस्तान में मौजूद थे, ये बात भी पहले आई थी चर्चा में। एक बार सुनते हैं उनको जी। Another important thing during Op Sindoor was air defense and how it panned out. So it is good, bad. We could do a lot. Mr. Ashok did talk about it, that some of our indigenous systems performed well, some did not perform very well too. So it's of course a cat and mouse game, as I was mentioning outside. We need to be at it. This time, thankfully, our population centers were not quite addressed. In the next round, we have to be prepared for that, and for that, more and more air defense, more and more counter rocket, artillery, drone sort of a system has to be prepared, for which we have to move very, very fast. So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise, because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to him. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. The next important lesson is the importance of C4ISR and civil military fusion. There is a lot to be done as far as this domain is concerned. When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that
we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. I talked about electronic warfare, and need for robust air defense system is something, again, our population centers also need to be protected. Of course, as far as the other, we do not have the luxury like, we would have been seeing the way Israel, they have the Iron Dome and a number of other air defense features that they have. We do not have a luxury because our country is vast. So, and such things cost a lot of money. So we need to. तो ये आप उपसेना प्रमुख को सुन रहे हैं, उन्होंने बहुत अहम बातें कही हैं। उन्होंने एक तो चाइना को लेकर ये कहा कि हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, 3 देशों से लड़ रहे थे, पाकिस्तान के साथ चीन और तुर्की। चीन के सारे हथियार थे पाकिस्तान के पास, 81% हथियार पाकिस्तान चीन के इस्तेमाल करता है। और उन्होंने कहा कि एक उधार की बंदूक मिली हुई है चाइना को, जिससे वो ये जंग लड़ रहा था। पाकिस्तान को आगे करके भारत के साथ हथियार उसके थे। उन्होंने कहा लाइव लैब बना दिया था, चीन ने अपने हथियारों की लाइव लैब की तरह पाकिस्तान को ट्रीट किया है। फिर उन्होंने तुर्की का नाम लेते हुए कहा कि ड्रोन दिए तुर्की ने, और ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स वो उन्होंने दिए वो ड्रोन्स ऑपरेट करने के लिए। और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जब डीजीएमओ लेवल की बातचीत हो रही थी तो पाकिस्तानियों को चीन की तरफ से लाइव इनपुट मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में कि भाई आपका शायद ये C4ISR, हाँ, कि आपको हथियार शायद आपका है सर, कि उसको वापस कीजिए, पीछे कीजिए। उन्होंने समथिंग मेंशन किया, C4ISR मेंशन किया। और साथ में उन्होंने 2-3 चीजें बहुत जो आपने अहम बताई हैं, उसके अंदर सबसे पहले कहा कि लैब का मतलब है जितने नए वेपन सिस्टम्स थे, जितने नए रेडार थे, जितने नए एयर डिफेंस सिस्टम थे, जितने PL-15, जितने भी नए सिस्टम थे, उनकी टेस्टिंग इस युद्ध के अंदर हो गई। और जो हमारे बच्चे PL-15 को लेकर घूम रहे थे, वो क्लियर इंडिकेशन है कि इनके ज्यादातर सिस्टम जो है फेल हो गए और हमारे वेपन सिस्टम्स को वो नहीं रोक सके। दूसरी चीज उन्होंने कही इंटेलिजेंस शेयरिंग, जो रियल टाइम इंटेलिजेंस जो चीन उनको प्रोवाइड कर रहा था और फीडबैक दे रहा था पाकिस्तान उनको हर चीज के बारे में, इंक्लूडिंग डीजीओ लेवल मीटिंग की बातें। और टर्की के बारे में उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही कि टर्की ने, जो मेरे को दूसरे सोर्सेस से भी पता चला है, 350 ड्रोन के करीब टर्की ने दिए हैं इस वॉर के अंदर, इस युद्ध के अंदर। इन्होंने कहा कि वो जहाज टर्की के तब लैंड कर रहे थे, C-130। दूसरी चीज अहम है, टर्की के ऑपरेटर्स भी वहां से ऑपरेट कर रहे थे, जो सौरभ जी बता रहे थे, बिल्कुल सही बात है। और 2 ऐसे ऑपरेटर्स टर्की के मारे भी गए हैं इस ऑपरेशंस के अंदर। तो जो एंड में ये बात बिल्कुल क्लियर आ रही है कि पाकिस्तान मोरा है, उनकी बोरोड नाइफ जो कह रहे हैं, पाकिस्तान मोरा है जिसका इस्तेमाल करके वो भारत को डिग्रेड और वीक करना चाहते हैं। जी, और बड़ा एडमिशन है त्रिपाठी जी। बोरोड कहेंगे बहल साहब कि दान का कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोरोड इसलिए कह रहे हैं कि उसको कंधा तो पाकिस्तान का लगा ना सर, कंधा तो पाकिस्तान का इस्तेमाल हुआ उसमें। लेकिन जो बातें कही हैं, बड़ा खुलकर उन्होंने अपनी बातें कही हैं। एयर डिफेंस के बारे में उन्होंने इसको भी बड़ी ऑनेस्टली कहा कि हमारे इंडिजिनस सिस्टम्स थे, हमारी अपनी तकनीक थी, कुछ काम की, कुछ बहुत अच्छी काम की, कुछ नहीं काम की। उन्होंने कहा लेकिन इस दिशा में, एयर डिफेंस की दिशा में हमको बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे जो पॉपुलेशन सेंटर थे, मतलब हमारी आबादी वाले इलाके, वो इस बार सीधे थ्रेट पर नहीं थे, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है और उनको बड़ी तेजी से एयर डिफेंस पर अपने और काम करने की जरूरत है। सर, निश्चित तौर पर हम लोग इसकी बात लगातार करते रहे और सारे जो जिसको हम कहते हैं ना, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो ये कह रहे हैं। और पहले हम एक बात कहते थे कि चाइना का कोई ऐसा संघर्ष किसी से होता नहीं है। उसके जो हथियार हैं, उन हथियारों की कितनी टेस्टिंग हुई है, वो किसी को 4th जनरेशन बताए, किसी को 5th कहे, किसी को 6th कहे, वो उसकी अपनी लैब और उसके अपने वातावरण में। युद्ध के समय में क्या वो उस तरह से काम करता है, इसकी टेस्टिंग नहीं हुई थी। दूसरा, जिसको हम बार बार कहते हैं कि भारत पिछले 10 सालों में तकनीक के तौर पर, अपनी मैपिंग के तौर पर, अपनी ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर वो कितना आगे बढ़ा, उसकी भी टेस्टिंग हो गई। लेकिन अब इसका दूसरा चरण क्या होता है, जब इतनी टेस्टिंग हमारी हुई है तो उतनी ही चीन की भी हुई। हम लड़ पाकिस्तान से रहे थे, लेकिन जो हमारे जो सेना के प्रमुख हैं वो बता रहे हैं और जो लगातार जो सामने आया कि चीन ही एक तरह से सारी लड़ाई लड़ा था।
और अगर वो लाइव अपडेशन की तरफ है तो इसका दूसरा पहलू ये भी समझिए कि हमारी जितनी जगह पर, जिसको हम कहते हैं सीमा पर, जो हमारा एक तरह से कहें कि सुरक्षा वाला जो इंतजाम है, वो चीन और पाकिस्तान इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं पर डे। हमारी जितनी भी सीमाएं चीन और पाकिस्तान से, हम उनको दो देश की बजाय एक देश मानकर चले। अब इसके बाद अगला क्या है, जो इस बार तो हम बचा ले गए, कहीं नहीं गए, और जिस खतरे की तरफ बता रहे हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है वहां हमको दोनों तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। एक एयर डिफेंस सिस्टम लगाना होगा, दूसरा क्या हम आज उस खतरे में पहुंच रहे हैं जहां हमें हर बड़े सेंटर पर कुछ तो बंकर तैयार करने पड़ेंगे, कुछ स्ट्रेटेजिक ऐसे लोकेशन तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि अब जिस खतरे की वो बात कर रहे हैं वो उसी खतरे की बात कर रहे हैं कि अगर अब संघर्ष होगा तो वो भी प्रयास करेंगे कि हमारी आबादी वाले इलाकों पर हमला करें। और हमने अभी ईरान और इजराइल में देखा, इजराइल ने खूब कमाल किया, लेकिन जब एक दिन ईरान ने एक साथ 350 मिसाइल और ड्रोन दागे तो उनके तेल अवीव के 3 बड़े जो सेंटर थे वो ध्वस्त हुए। हालांकि एक उसमें अमेरिकी सेंटर था तो अमेरिका और नाराज हो गया, जिसके बाद B-2 बॉम्बर भी चले। तो हमारे साथ क्या है कि हमें ही लड़ना है, लेकिन ये सारी तैयारी उससे जुड़ी हुई है और कम से कम हम थोड़ा संतुष्ट भी हो सकते हैं। अगर सेना ये सब बता रही है तो इसका मतलब ये है कि वो शतांश होगा, जो तैयारी उनकी है वो उससे कई गुना ज्यादा होगी, बहुत बेहतर होगी। चीन का नाम लेते हुए उन्होंने सर एक चीज कही थी, सर आप ही के पास आ रहा हूं, एक चीज उन्होंने और कही कि उसको ये सूट करता है चाइना को कि आप ये उधार की बंदूक पाकिस्तान से लड़ते रहें, अपने हथियार भी टेस्ट करा लो, और वो नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर अपने बूट मट्टी में गंदे नहीं करना चाहता। मतलब सीधी लड़ाई आपसे वो उत्तरी सीमा पर नहीं लड़ना चाहता। नहीं, वही बात मैं कर रहा था कि वैसे भी इंडिया जो है वो टू फ्रंट वॉर डॉक्ट्रिन पर चलता है, लेकिन ये पहला मौका, क्योंकि अभी तक था कि हम समझते थे कि पाकिस्तान और चीन दोनों दुश्मन हैं, एक तरफ नॉर्दर्न में वहाँ पर चाइना है, पाकिस्तान इधर है। अब चाइना बिना उस लड़ाई को लड़े भी हमारे साथ लड़ाई लड़ रहा है। ये थोड़ा ज़्यादा गंभीर मसला है ना एयर कमांडर साहब, कि भाई पहले चीन के साथ लड़ रहे हैं, हम गलवान में है, सामने है तो दिख रहा है ना, लेकिन अब उन्होंने कहा कि रोज रोज वहाँ पर लड़ने की बजाय इनके कंधे पर बंदूक रखकर भी हम लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई को अभी जो, जैसे हमारे उपसेना प्रमुख ने भी कहा है, तो ये लड़ाई सीधी चीन के साथ हमारी लड़ाई है। तो यदि टेस्टिंग उन्होंने किया तो हमने भी टेस्टिंग, सारे हथियार उसी के हैं, हथियार उसी तरह से हैं, और वो पूरी इंफॉर्मेशन को भी वहां पर अपडेट कर रहा है पाकिस्तान को। तो क्या ये जो एक नई तरीके की लड़ाई है, प्रॉक्सी वार से भी एक नया आगे आ गया ये, एक तो प्रॉक्सी वॉर है, और यहाँ तो सीधा आपने कहा, जो आपने ठीक से कहा कि भाई अपने बूट गंदे मत करो और उनके भरोसे ही आप लड़ाई लड़ लो। तो ये क्या तो होता है समर्थन, वॉर डॉक्ट्रिन है, उससे आगे का मसला है। एक चीज तो हुई समर्थन कि भाई एक देश दूसरे देश की मदद कर रहा है। एक बार सर का इनपुट ले लूं मैं, यहां तो ऐसा लग रहा है कि आप चलती जंग में बिल्कुल एक साथ चल रहे थे, प्लान आप एक साथ कर रहे हो, जानकारियां आप रियल टाइम शेयर कर रहे हो, हथियार आपके दिए हुए हैं। मतलब चाइना एक तरीके से एक्टिव वॉर ही लड़ रहा था। वही मैं कह रहा हूं, कोई दो राय नहीं इसके अंदर। जो पाकिस्तान ने जो इतनी हिम्मत कर ली उसके पीछे किसी ना किसी का तो हाथ था, और सब जानते हैं कि चाइना का पूरा सपोर्ट पाकिस्तान के पीछे रहा है। तुर्की का भी उन्होंने जिक्र किया, और एक नया फ्रंट एक और जो तैयार होने की कोशिश कर रहा है भारत के खिलाफ, वो बांग्लादेश है। जिस तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना मिलकर एक तिकड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारत के लिए अब एक नया थ्रेड और खड़ा हो गया है कि तुर्की तो दूर है, लेकिन बांग्लादेश की बॉर्डर तो भारत से लगी हुई है। तो क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना मिलकर कोई ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब भारत पाकिस्तान का फिर से कोई युद्ध हो तो बांग्लादेश और चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करे? मैं खबर दे दूं, आपने अच्छा याद दिला दिया। ये बांग्लादेश और तुर्की के बीच में एक पार्टनरशिप होने वाली है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसको लेकर के तुर्की के डिफेंस इंडस्ट्री एजेंसी के प्रमुख हरलुक गोरगुन ये 8 जुलाई को ढाका जाएंगे, और वहां पर इनकी बातचीत जो है वहां के आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ तीनों के साथ होगी। और ये बांग्लादेश में एक डिफेंस कॉरिडोर जैसा हमारे यहाँ बनता है, ऐसा एक डिफेंस इकोनॉमिक जोन जो है, वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जोन, वो ये बनाना चाहते हैं। और खास तौर पर इनकी जो पार्टनरशिप होने वाली है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी, रडार सिस्टम्स, मिसाइल डेवलपमेंट और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, इन क्षेत्रों में ये लोग बात कर रहे हैं एक्टिवली। बिल्कुल, अगर चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर एक हो जाते हैं, और बांग्लादेश में अगर चाइना कोई इन्वेस्ट करता है, कोई बॉर्डर को कुछ बड़ा हथियारों का जखीरा इकट्ठा करता है, तो भारत के बहुत करीब चाइना और आ जाएगा। हालांकि चाइना की भी बॉर्डर भारत से लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि एक नया थ्रेड भारत के लिए खड़ा हो रहा है बांग्लादेश के रूप में, जो कभी भारत का एक बहुत अच्छा मित्र हुआ करता था। तो चुनौतियां भारत को सबकी तरफ से, और जब भी युद्ध होता है तो दो दुश्मन हाथ मिलाते ही। अगर आप रशिया में और यूक्रेन का युद्ध देखेंगे तो यूक्रेन अकेला तो लड़ नहीं रहा, यूक्रेन के पीछे यूरोप लगा हुआ, उसके पीछे अमेरिका की ताकत है कि भाई वो रूस से लड़ता रहे। तो जब ऐसा वॉर होता है तो एक देश के पीछे दूसरे देश
जरूर लगते हैं। भारत को यह समझना होगा कि जब भी युद्ध होगा तो भारत हमेशा अकेला रहेगा, उसके सामने हमेशा 3 से 4 देश की सेनाएं रहेगी। तो उस तरीके से भारत को अपने डिफेंस फोर्सेस को तैयार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान भले ही होगा लेकिन उससे असली युद्ध चाइना से लड़ना है। अभी आपने इजराइल का जिक्र किया था, तो इजराइल मतलब घिरा हुआ है दुश्मनों से। आपके भी पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे बुरे वक्त में बदलते रहते हैं, जैसे हैं उनके साथ डील करना पड़ेगा। पैरेलल में जो मीटिंग हुई यूनान में पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश की, वो स्ट्रेटेजिक मीटिंग वहाँ पर बड़ी थी, तो वो तो अपने आप में एक मैसेज है। और वो उस समय हो रही है जब एससीओ की मीटिंग वहाँ पर चल रही है, शंघाई कॉपरेशन की जो मीटिंग चल रही है, उसी समय चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की मीटिंग हो रही है। और उससे भी खतरनाक मुझे लगा कि जब कराची में बांग्लादेश ने पाकिस्तान की सेना के साथ एक्सरसाइज की है, जॉइंट एक्सरसाइज की है, तो ये सब चीज़ें मिलकर वहाँ पर पहुँच ही रही है ना, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अच्छा, ये सारी बातें जो एक बड़ी खतरनाक पिक्चर बनाती हैं। मैं आप कह लीजिए अपनी बात, फिर मैं सिर्फ एक लाइन, देखिए हम लोग जब इस खतरे को देखते हैं तो वो खतरा तो है ही, आज से तो है नहीं, वो हमेशा रहा है। बांग्लादेश कोई पहली बार तो ये खतरा हुआ नहीं, इधर अच्छे संबंध थे, लंबे समय तक चला, इसलिए ठीक लगा। अभी उनको निर्वासित कर दिया गया शेख हसीना को, तो हमें लग रहा है। लेकिन एक बात समझिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों फटे हाल देश है भाई। बांग्लादेश की जो भी अच्छाई हुई शेख हसीना के समय में हुई, अब देखिए स्थिति है, वो बिजली का बिल नहीं भर पाता। अब लाख राहुल गांधी, अडानी, अंबानी बोले, उसी अडानी को अब जाके बिजली का बिल दे पाया है। बांग्लादेश का एक्सपोर्ट वो पूरी तरह से डाउन हो रहा है, तो उनके पास आएगा नहीं पैसा, यानी वो अमेरिका या फिर चीन की कृपा पर होंगे। पाकिस्तान के पास कोई अपनी ऐसी मार्केट नहीं है। तो हम जब इस थ्रेट को कह रहे हैं तो इस थ्रेट को निश्चित तौर पर हमें बड़ा करके देखना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा नहीं है भाई, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये कृपा पर दो ऐसे, यूं समझ लीजिए कि एक बड़ा बदमाश वो दो छोटे छोटे बदमाशों को पालता है जिनके पास खाने के लिए नहीं, चलो आज तुमको ये दिया, जाओ शूट करके आओ। तो ये इस तरह से इस खबर पर फाइनल कमेंट सामने खड़ा है। फाइनल कमेंट एयर कमोडोर साहब का, थोड़ा सा लोगों को सर भरोसा भी दिया जाए कि ये खतरा इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, चारों तरफ से हो तो ठीक है, लेकिन आप सक्षम है। बिल्कुल। और सौरव जी, अब तो हम पहले से भी बहुत ज्यादा सक्षम हैं। पहले तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी कहते थे चीन की। वो क्या है स्ट्रैटेजी? चाहे वो सितवे है, चाहे वो हम्बनतोता पोर्ट है श्रीलंका में, सितवे म्यांमार में है, हम्बनतोता पोर्ट है श्रीलंका में, या ग्वादर है पाकिस्तान में। देखिए वो कैसे भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। अब जो बात हुई थी ट्राइलेटरल मीटिंग की, तो एक साइड से चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, एक साइड से चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब BRI का प्रोजेक्ट जो है वो अफगानिस्तान में लाना चाहता है। तो ये पहले से इसकी स्ट्रैटेजी चल रही है, पहले से ही डेवलप कर रहा है, और हमेशा से भारत रेजिलिएंट रहा है। भारत की जो फोर्सेस हैं उसकी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी भारत की क्या है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके अंदर जो जज्बा है, जो स्पिरिट है, जो यूनिफिकेशन है। अब और जब भी हम कहीं पे भी इस्तेमाल हुए हैं विश्व के अंदर, जब भी बहुत बड़ी मुश्किलें आई हैं, जहां पे पीस कीपिंग ऑपरेशंस की जरूरत पड़ी है, हमेशा भारतीय फोर्सेस को इस्तेमाल किया गया। और मैं आपके मन में जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, हमारी सिचुएशन ग्रेव जरूर बना रहे हैं चीन, क्योंकि वो हमें डिग्रेड करके सिर्फ साउथ एशिया में रखना चाहते हैं, लेकिन भारत को कोई नहीं रोक सकता। हम अभी तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हमारी 4th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस बन रही है, और हमारे जितने भी हम देखें, मिल्क हो, फ्रूट्स हो, 2 व्हीलर्स हो, हर जगह पे हम नंबर 1 to 2 पे हैं। तो कोई भारत को रोक नहीं सकता। ये युग भारत का है। जज्बा है आपके पास इकोनॉमी है, और आपको क्या चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत सडन जंप मारने वाला हूं सर, बॉर्डर चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबसे सीधा बिहार। तो बिहार इलेक्शन की खबर, और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है बिहार से। जंग भी, हाँ ये भी जंग है, बिल्कुल जंग है। अब इस जंग में सेनाएं जो हैं वो तैयार हो रही हैं फिलहाल। अब सेनाओं में जैसे यहाँ है ना कि एक बांग्लादेशी कह रहा हमको भी ले लो अपने साथ, भाई ठीक है, तो हम साथ में लड़ेंगे, तो ऐसे यहाँ भी हो रहा है। अब ये गोलबंदी कैसी चल रही है? सीमांचल से शुरुआत करते हैं। मतलब बिहार का वो इलाका जो मुस्लिम डोमिनेंट इलाका है, सीमांचल के इस इलाके को देखें तो बाय मेनी एस्टिमेट्स 50% मुस्लिम पॉपुलेशन है। असदुद्दीन ओवैसी की बात सबसे पहले हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इस इलेक्शन के अंदर एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर बन सकते हैं। इनको पिछली बार 5 सीटें मिली थी, 5 इसी सीमांचल से थी। ये 20 सीटें लड़े थे, उसमें से 14 सीमांचल में थी, 14 में से 5 सीटें ये जीत गए। अब इस बार उन्होंने खुलकर ये कहा कि हम महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसको लेकर पहले बयान दे चुके हैं ओवैसी जी। अब इन्होंने एक फॉर्मल चिट्ठी लिखी है लालू यादव को, आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको। हालांकि चिट्ठी पर हस्ताक्षर असदुद्दीन ओवैसी का नहीं है, अख्तरुल इमान का है, जो कि इनके स्टेट प्रेसिडेंट हैं और इकलौते विधायक हैं। 5 जीते थे, 4 आरजेडी वाले तोड़ करके ले गए थे। अब इन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है कि साहब हम सेकुलर वोट का बंटवारा नहीं चाहते, और पिछली बार वो हुआ था, इससे किसी को फायदा नहीं हुआ।
और एनडीए की सरकार बन गई। हर कीमत पर बीजेपी और नीतीश कुमार को रोकना हमारा मकसद है। तो हम चाहते हैं कि आप हमको सम्मानजनक सीटें दीजिए, हम आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे ताकि सेक्युलर वोट का कोई बंटवारा ना हो। अब ये चिट्ठी लिखने की नौबत क्यों आई? क्योंकि पहले एक बार इन्होंने इच्छा जताई थी, इनको जवाब नहीं मिला, फिर उन्होंने कहा था ठीक है हम तीसरा मोर्चा बना लेंगे। ये तीसरे मोर्चे की भी प्रयास कर रहे थे। अब कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से, चूंकि ये कह दिया गया था उस वक्त कि हमें कोई फॉर्मल प्रस्ताव नहीं मिला, हमें फॉर्मली अप्रोच करेंगे असदुद्दीन ओवैसी, तब हम उसका जवाब देंगे। तो ये उनका फॉर्मल प्रस्ताव है। क्या वो ऐसा कर पाने में क्या मतलब ये सूट करता है महागठबंधन को, मतलब कांग्रेस को और आरजेडी को, कि इनको लिया जाए? वोट के लिहाज से देखें तो बिल्कुल सूट करता है, क्योंकि वोट तो ये काटते हैं। पिछले चुनाव में इनको लगभग 11% मुस्लिम वोट मिला था। एक बहुत बड़ा चंक है मुस्लिम वोट का, अगर एक अकेले असदुद्दीन ओवैसी ले जाते हैं तो। और अगर इनकी ताकत कुछ भी बढ़ी है तब से, तो सीधा नुकसान ये करेंगे किसका? पिछली बार जीते ये 5, लेकिन माना जाता है कि बाकी जगहों पर इन्होंने जो कांग्रेस के और आरजेडी के कैंडिडेट थे, कई जगहों पर इनकी वजह से हार भी हुई है। तो दोहरी मार गठबंधन को पड़ती है। इस बार क्या ऐसा होगा, देखना होगा। कुछ स्टेटमेंट सुनते हैं। देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा, ओवैसी साहब मूलतः में उनका बेस हैदराबाद में है। उनके चुनाव लड़ने से क्या होता है नहीं होता है ये ओवैसी साहब भी जानते हैं, उनके सलाहकार भी जानते हैं। अगर आपकी मंशा है कि बीजेपी की अधिनायकवादी चरित्र को शिकस्त दी जाए, अगर नफरत की उनकी राजनीति को शिकस्त दी जाए, तो कई दफ़ा चुनाव ना लड़ने का फैसला भी उसी तरह का फैसला होगा। मुझे उम्मीद है उस पर विचार करें। जब आपका ना लड़ने का फैसला तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे महागठबंधन को, मैं समझता हूं कि आप उस संदर्भ में सोचिए कि महागठबंधन ने एक लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींच दी है। इस लकीर को समझते हुए मैं आग्रह करूंगा माननीय ओवैसी साहब, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, देश की राजनीति को भी निर्धारित करेगा। सवाल है कि ओवैसी साहब उस बयान पर जरा आप टिके हैं कि नहीं, कि आपने कहा था कि 4 मेरा एमएलए तोड़ा है, हम 40 लेंगे। लेकिन आपको राष्ट्रीय जनता दल और इंडी गठबंधन का अंदरूनी मामला है, लेकिन परिपाटी तो रही है, ये सर्वविदित रहा है कि बिना कुछ दान और जकात के मुस्कुराता नहीं है राष्ट्रीय जनता दल। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल वाले देखिए मनोज झा जी कितने होशियार। उन्होंने कहा कि आप सेकुलर वोट का बंटवारा नहीं चाहते तो चुनाव मत लड़िए, सीधी सी बात है। आपको क्यों चाहिए हमारे से सीटें? तो आप गठबंधन में आ सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़े बगैर। हमें आपका साथ स्वीकार है, लेकिन बस आप ये कह दीजिए कि हम इलेक्शन में नहीं खड़े होंगे। कि बड़ा ठीक है, ऑप्शन दिया उन्होंने, जवाब दिया ओवैसी जी को, त्रिपाठी जी। नहीं, पता नहीं मनोज झा जी दिनों दिन कितना एक परिवार की भक्ति में ऐसे कुतर्की, पूरी तरह से तर्कहीन होते चले जाएंगे। ठीक है, आपको लालू जी के परिवार का पूरी तरह से जो कहते हैं ना, ठीक है, वो मनोज झा जी का सम्मान है, लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह के तर्क देते हैं, अरे भाई एक राजनीतिक चिट्ठी थी वो। हाँ, वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमने पहले भी आपसे लोकसभा विधानसभा में कहा था, आपने समझौता नहीं किया। और वो तब कह रहे हैं जब 5 विधायक जीते, और कितने मत थे? 2% भी मत नहीं थे, लेकिन वो 2% कहां थे? उसी सीमांचल में जहां उनकी 5 विधायक की सीट खत्म हो गई। ठीक है, आप 4 तोड़ के लेके चले गए। आज अगर वो ऐसी ही बात कहेंगे, और मनोज झा जैसा अगर सामने आदमी होगा, जब वो ऐसी मंच से कहेंगे कि वो मनोज झा ये कह रहा है कि चुनाव ही मत लड़ो, मुसलमानों की देश में अकेली पार्टी वो चुनाव ना लड़े, तेजस्वी जी क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे? भाई अगर ये मसला पूरा सेकुलर वोटों का है, अगर डेमोक्रेसी बचाने का, क्यों चुनाव लड़ेंगे? वो भी ना लड़े। तेजस्वी जी ने बड़ी लाइन खींच दी। कौन सी बड़ी लाइन खींच दी? नीतीश जी के साथ जाकर डिप्टी बनकर। ओवैसी तो नहीं गए नरेंद्र मोदी के साथ डिप्टी बनने, ओवैसी तो नहीं गए नीतीश कुमार के सामने सरेंडर होने, ओवैसी तो नहीं गए किसी के सामने सरेंडर होने के लिए। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा, जिसको कहें कि अगर इसको राजनीतिक तौर पर देखें, कुल्हाड़ी पर बैठ जाने वाला बयान मनोज झा ने दिया है। लोकतंत्र में आप किसी को कहें कि तुम चुनाव मत लड़ो, इससे हमारा चुनाव बच जाएगा। आपको लगता है महागठबंधन को अलायंस करना चाहिए अपने हित के लिए? आप अलायंस करें या ना करें, लेकिन उसका जवाब राजनीतिक होगा ना। आप किसी को कहें अजय ठीक है तुम क्या करो, अजय ठीक है भाई तुम पढ़ाई लिखाई बंद कर दो, तुम परीक्षा में मत बैठो, हम टॉप करेंगे, ये कोई सेंस है? आज बड़ा अच्छा बोले आप ओवैसी के लिए। नहीं, मैं ओवैसी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप राजनीतिक तौर पर कहां खड़े हैं।
ओवैसी तो जो कर रहे हैं वो अपना उनका काम है और ठीक कर रहे हैं। नहीं, अब देखिए इससे क्लियर हो गया मनोज झा के बाद, भाई हमको नहीं चाहिए ओवैसी का साथ। सवाल है क्यों? वोट बचता है उसमें, बात सही है, लेकिन ओवैसी से परहेज क्यों? देखिए मनोज झा इस बात को जानते हैं और राष्ट्रीय जनता दल भी जानती है कि भाई ओवैसी अगर चुनाव लड़ेंगे तो पिछली बार जिस तरह से 5 सीटें वो जीत कर आए थे तो 4 विधायक हमारे पास आए गए थे ना। तो ओवैसी का जाने का मतलब, ओवैसी इसलिए गठबंधन में नहीं जा रहे कि हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, वो इसलिए जा रहे हैं कि उनको डर है कि मैं अगर चुनाव लड़ूंगा फिर 3-4 विधायक जीत कर आएंगे, फिर आरजेडी में मिलकर चले जाएंगे। तो जो बसपा के साथ पूरे हिंदुस्तान में होता है, यूपी के बाहर के राजस्थान में हर बार 4 विधायक आते हैं, हर बार वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। तो ओवैसी को डर है कि मैं गठबंधन में रहूंगा तो कम से कम मेरे विधायक बचे रहेंगे, 2 और 4 विधायक। तो ओवैसी ये चाहते हैं, और ओवैसी ऐसा तो नहीं गठबंधन में चुनाव नहीं लड़े। 2020 में सेकुलर गठबंधन बनाया था, उपेंद्र कुशवाहा इनके साथ थे, बहुजन समाज पार्टी इनके साथ थी, ओम प्रकाश राजभर इनके साथ थे, सबने मिलकर चुनाव लड़ा, बाद में विधायक आए तो चले गए। मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव इस समय जिस स्थिति में चुनाव लड़ रहे वो ओवैसी को साथ रहने की कोशिश करेंगे। और देखिए, एक दल चाहता है कि भाई वोटों का बंटवारा ना हो। 2020 का चुनाव हुआ था तो नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी से कहा था कि भैया आप चुनाव मत लड़ो, आप वोटों को क्यों तोड़ना चाह रहे हो। इसी चिराग पासवान से कहा गया था कि आप चुनाव लड़के किसका वोट काटने की कोशिश कर रहे हो, आप क्यों चुनाव लड़ रहे हो। तो बड़ी पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि उसका बंटवारा का, वोटों का बंटवारा ना हो, क्योंकि ये तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि वोटों का बंटवारा लेकिन अब ओवैसी की बिहार में वो हैसियत नहीं है ना कि आप कह के बैठा दीजिए। ये बात तय है कि अब वक्फ बिल के बाद जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार उसका विरोध कर रहे हैं, अब बिहार की राजनीति के अंदर मुसलमान वोट एक तरफा तेजस्वी के पास जाने वाला है। परंतु तेजस्वी यादव खुल के कहते हैं कि भाई मुझे अगर मौलाना कहा जा रहा है तो मेरे लिए गर्व की बात है। वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो हम फाड़ कर फेंक देंगे, जबकि उनके लिए संभव नहीं है कि वक्फ बिल को फाड़ के फेंक दें। ऐसा नहीं हो सकता। अब ये तय है कि मुस्लिम वोट एक तरफा, चाहे वो नीतीश कुमार का रहा हो, चाहे ओवैसी का रहा हो, आरजेडी के पास पूरा मुस्लिम वोट लगभग जाने की स्थिति में आ गया है। बहुत कम वोट है जो इनके पास जाएगा। मैं कह रहा हूं ओवैसी के पास बिल्कुल। अच्छा ठीक है, ओवैसी हो या नीतीश कुमार हो या कोई दूसरी पार्टी हो, पिछली बार जैसे हालात नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं है। भाई लोगों के मन में ये बात आ सकती है, बात ठीक है, मुस्लिम वोटर के मन में यार तुमको वोट तो दिया था, तुम्हारा आदमी तो चला गया, फायदा क्या हुआ तुमको, मतलब तुम सीधा हम उसी को वोट दे देते इस बार। तो ये नुकसान भी हो सकता है क्या ओवैसी को इस बार? तो मनोज झा जी के बयान से मुझे वो कमलनाथ जी का बयान याद आया, अखिलेश वखिलेश वाला। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कहा था ना कि ये कौन अखिलेश वखिलेश, हाँ, राजनीतिक अहंकार, राजनीतिक अहंकार। तो वो लग रहा, और मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ हर्ष जी के कि ये कैसे आप कह सकते हो। आप कहते हैं कि इस पर बैठेंगे, विचार करेंगे, क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, या लालू जी तय करेंगे। यदि आपका सेवा भाव इतना ही है तो बोले कि लालू जी तय करेंगे कि उन्होंने जो किया है प्रस्ताव। ये सिर्फ जवाब ही है सर, ये मना करने का तरीका है। नहीं, अच्छा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है ना। पॉलिटिक्स में आप एक तो ब्लैक एंड व्हाइट में सोचना बंद कर दीजिए। पॉलिटिक्स हमेशा ग्रे एरिया है जिसमें हमेशा चलता रहता है। एक बार एक उपन्यास है वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे, वो पढ़ लीजिए। तो जिंदगी जो है ना ग्रे शेड्स के साथ चलती है। मनोज झा ने बोल दिया, मनोज झा कोई अंतिम वाक्य वो तो है नहीं, शब्द है क्या, ब्रह्म वाक्य है क्या, चलेगा। और वो इस तरह से दबाव भी बनाते हैं कि फिर आपने ही कहा, आप ही दबाव बना रहे थे कि आपको आना है तो हम इतनी सीट दे सकते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। और ये कहना कि अच्छा उनका वोट नहीं मिलेगा तो अखिलेश जो ओवैसी के पास है वोट, वो उनको वोट एक लाइन में मुझे बता दें, आप ओवैसी को फैक्टर मानते हैं बिहार चुनाव में या नहीं? 100% और जबरदस्त फैक्टर होगा। जबरदस्त तरह से ओवैसी ने ये लड़ाई लड़ी है, मजबूत फैक्टर। आप तो कह चुके हैं कि फैक्टर नहीं है। आप बैल साहब का टेक है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो 17% वोट है, हम बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि ये चला जाएगा आरजेडी के पास। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वोट कटेगा वो कटेगा जेडीयू से, और जो वोट कटेगा वो कटेगा कांग्रेस से। लेकिन आज भी अगर ओवैसी जाते हैं सीमांचल के अंदर, मैं श्योर हूं कि अगर तो गठबंधन में मिलकर जाते हैं और एडिशनल सीट्स होती हैं तो ज्यादा जीतेंगे, नहीं तो 5 सीट तो लेके आएंगे मिनिमम। चलिए ओके। अच्छा, बिहार में जो दूसरा मुद्दा चल रहा है वो है वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा। इसको लेकर के कल सारी बिहार की पॉलिटिकल पार्टीज की और भी टीएमसी वगैरह भी थे उसमें, उनकी चुनाव आयोग से जाकर के बैठक हो गई, मुलाकात हो गई और चुनाव आयोग ने उनको जवाब दिया। हालांकि कांग्रेस इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस ने तो कहा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि हमें लगता है हम गलत पते पर आ गए, हम सीधे बीजेपी के दफ्तर चले जाते, वहां जाकर के सीधे उनसे बात कर लेते, खाम का हमने अपना वक्त बर्बाद किया। जो भी हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से जवाब दिया है इन सारी पार्टियों को, और उसमें उन्होंने एक बाकायदा एक टाइमलाइन दी है कि ये जो वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम है ये कैसे पूरा होगा। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमारे पास जो हमारा काम चल रहा है वो हमारे टाइम टेबल के हिसाब से चल रहा है और ये वक्त पर पूरा हो जाएगा, इसलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 7.9 करोड़ टोटल वोटर होंगे बिहार में इस बार, और चुनाव आयोग ने ये कहा है कि ये जो
फर्स्ट फेज के अंदर जो इसमें काम होना है 25 जून से लेकर 3 जुलाई वो मियाद खत्म हो गई, इसके अंदर फॉर्म बांटे जाने थे। तो उन्होंने कहा अब इसका मतलब उनके हिसाब से फॉर्म सारे लोगों को बांट दिए गए होंगे, जितने लोगों को अब वेरिफिकेशन जिनका करना है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि अब जो दूसरा चरण शुरू होगा उसमें जो बीएलओ होते हैं पार्टी के वो और लाखों वॉलंटियर होंगे, उन 4 लाख वॉलंटियर, वो वॉलंटियर जाकर के ये फॉर्म भरवाएंगे और फॉर्म भरवाने के बाद फिर ये वापस हमारे पास लाया जाएगा। ये दूसरा चरण होगा। तीसरे चरण के अंदर ये सारा डेटा वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा और उसके बाद जितनी आपत्ति होती है, जिस किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन है, इसका नाम कट गया, रह गया, डालना है, उस सारी प्रोसीजर को फिर मंजूर वो काम किया जाएगा और फिर फाइनली सितंबर 30 तक उनका कहना है कि हम एक रिवाइज्ड और फाइनल इलेक्टोरल रोल वो पब्लिश कर देंगे। क्या इस जवाब के बाद ये छोटा एनआरसी है जी, पीछे बैकडोर एनआरसी है, मुसलमान का गरीब का वोट काटने के लिए है, 2 करोड़ लोगों का वोट छिन जाएगा, ये दावा किया गया, अब ये सारी बहस बंद होगी या नहीं होगी? त्रिपाठी जी बताएं। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जब आप अभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को हथकड़ी वाली खबर दिखा रहे थे तो उसी के ठीक बाद ये खबर दिखानी थी, क्योंकि हम लोग मतलब सोचिए कैसे देश में रह रहे हैं कि यहां पार्टियां कह रही कि नहीं नहीं सूची न करो, नहीं तो हमारा वाला आदमी निकल जाएगा। हथकड़ी में जो बंद किया जाता है वो आदमी किसी का हो सकता है क्या? हम लोग अभी तो बात कर रहे थे, अभी विजय जी ने कहा कम से कम इस मामले पे रुकना चाहिए। हम लोग इस पर 20 बार कह चुके हैं कि अगर टाइमलाइन में कोई दिक्कत है, समय में कोई दिक्कत है, प्रक्रिया में कोई दिक्कत है, झूठ फैलाया गया, माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र लाना होगा, 2003 की सूची तक तो कोई ऐसी बाध्यता नहीं, और जितने डॉक्यूमेंट हैं उसमें ढेर सारे डॉक्यूमेंट हैं, उनमें से कोई आप दे दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों चाहता है विपक्ष की सूची का पुनरीक्षण नहीं हो? क्या ऐसे बोगस वोटर्स की बड़ी संख्या उनको लगती है कि वो उन्हीं के साथ है? क्या ऐसे गांवों में, ऐसी जगह पर, शहरों में जहां बोगस वोटिंग हो रही है, वो उनको लगता है कि हमारे वाले ही कटेंगे? प्रवासी तो ज्यादा अभी मतलब अभी का पिछले कुछ चुनावों का देखें तो प्रवासी तो ज्यादातर बिहारी किसके साथ रहता है? वो तो अधिकांशतः भारतीय जनता पार्टी के साथ गया, महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ रहता था लेकिन वो भी कुछ हद तक इधर आया। तो सवाल यह है कि फिर भी क्यों लगता है कि जो बेईमान होगा, जो गलत होगा, ऐसा आदमी वो हमारा वोटर होगा? मुझे बड़ी चिंता की बात लगती है और देश के लिहाज से, देश की सुरक्षा के लिहाज से चिंता की बात है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर प्रोसेस में कोई दिक्कत है, समय और चाहिए तो उसकी बात करनी चाहिए, लेकिन आप कहें कि हम पुनरीक्षण नहीं होने देंगे, ऐसे ही चुनाव करा दो, इस चुनाव के पहले क्यों नहीं कराया था, उस चुनाव के बाद क्यों नहीं करा लेते, तो ये थोड़ा चिंता की बात है। अब एक लाइन की बात है, विपक्ष को लगता है कि ये प्रोसीजर जो है सीधे सीधे पूरा नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई मंशा कुछ और है। चुनाव आयोग कह रहे हैं साहब हम टाइम पर पूरा कर लेंगे, मेरा काम है मैं कर लूंगा, आप टेंशन मत लो। कैसे? अब भरोसा नहीं है, ये बताना चाहिए ना कि आखिर कैसे उनका वाला वोटर हटा दिया जाएगा, ये भी तो बताना चाहिए। और मुझे लगता है ये तो बड़ी अच्छी चीज है, सारी पार्टियां लग जाएं, उनका इतना बड़ा सिस्टम है। तेजस्वी यादव कितनी मजबूत पार्टी, अब मैं देख रहा था पप्पू यादव का बयान, करे अपने गांव में मत घुसने दो बीएलओ को। ठीक, यानी आप गुंडागर्दी से लोकतंत्र चलाएंगे? छोड़िए, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी गाड़ी नहीं, अब गाड़ी ठीक है आपकी चलेगी, आपको त्रिपाठी की गाड़ी चलेगी अब।